हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 दैट इज डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन. नाउ व्हाट इज दिस पैरामीट्रिक फंक्शन? सपोज x it is function of t and y is also function of t. Both x and y they are function of t. Then this t is called parameter. Now how to find out dy by dx? Now these are parametric function because they are expressed in terms of t. So I will explain you by taking one example. Suppose x is sin t and y is cos t. Now you can see students that x it is function of t, y is also function of t. So what is this t? T is parameter and both of these are called parametric function of t. So dy by dx निकालने के लिए what we have to find out? First find out dx by dt, that is differentiate x with respect to t. तो साइन t का डेरिवेटिव इट इज cos t, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, सो सिंपल cos t. नाउ डिफरेंशिएट y ऑल्सो विद रेस्पेक्ट टू t. डेरिवेटिव ऑफ cos t विद रेस्पेक्ट टू t इट इज माइनस साइन t. अब हमें मेन टॉपिक पर आते हैं. वी हैव टू फाइंड आउट dy बाय dx. सो dy बाई डी एक्स याद में रखना है, ऊपर dy बाई डी एक्स है तो पहले dy अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी टी. नाउ स्टूडेंट्स व्हाट इज dy बाई डी टी? इट इज माइनस साइन टी डिवाइडेड बाय dx बाय डी टी दैट इज cos t. सो फाइनल आंसर इज माइनस tan t. इट विल बी इन टर्म्स ऑफ t, पैरामीटर की टर्म्स में ही होगा. सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट. x equals to 80 square and y equals to 280. So how to start? Differentiating with respect to t. So d by dt of x and d by dt of 80 square दोनों साइड t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. सो dx बाई डी टी a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आएगा एंड d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर विच इज 2t. सो ये हो जाएगा 280 dx अपॉन डी टी इट इज 280. मार्क इट एज इक्वेशन 1. नाउ y is also given 2at. So differentiating with respect to t. इसे भी t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे because it is also function of t. So d by dt of y, d by dt of 2at. 2a डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा d by dt of t. t का डेरिवेटिव t की रेस्पेक्ट में इट इज 1. सो dy बाई डी टी हो जाएगा 2a. मार्क दिस एज सेकेंड. नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पहले पुट करते हैं. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स. ओके, dy बाई डी एक्स इज, याद रखना है पहले dy अपॉन डी टी divided by dx upon dt. Now what is dy by dt? It is 2a and dx by dt it is 280. ये हमने कहाँ से लिखा? From first and second. 2a से 2a cancel and therefore final answer dy by dx equals to 1 upon t. Start second part students. X is a cot theta. So differentiating with respect to
थीटा। अभी हम किसकी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, बिकॉज हेयर थीटा इज पेरीमीटर, यहाँ पर पेरीमीटर थीटा है। सो डी बाय डी थीटा ऑफ एक्स, ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बाय डी थीटा ऑफ कॉट थीटा। चिल्ड्रन, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा? इट इज माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, सो ये हो गया dx अपॉन d theta. Now differentiating again y also with respect to theta. So d by d theta of y, b constant बाहर आ जाएगा, d by d theta of cosec theta. Now cosec theta का reciprocal, cosec theta का derivative is minus cosec theta into cot theta. Mark this as 1 and this as 2. So therefore dy by dx, what is dy by dx? Its formula is dy by d theta divided by dx upon d theta. So dy by d theta, it is minus b cosec theta cot theta, and this is minus a cosec square theta from first and second. Now minus से minus cancel, cosec से cosec theta cancel. So dy by dx we can write as b upon a. cot theta को simplify करके लिख सकते हैं cos theta upon sin theta, and cosec theta को 1 upon sin theta. sin theta से sin theta cancel, it is b upon a cos theta. This is dy by dx. In third, x is under root a square plus m square and y is log of a square plus m square. So students, here m is perimeter. m is the perimeter because generally a को हम constant consider करते हैं. So differentiating with respect to m, so dx upon dm. Now in this we will use chain rule. What is derivative of root x? It is 1 upon 2 root x. So derivative of this is 1 upon 2 root a square plus m square. अब जिसे x कंसिडर किया चेन रूल से, d by dm of a square plus m square. So this we can write a square का डेरिवेटिव 0 and m square का डेरिवेटिव 2m. ये 2 से ये 2 कैंसिल, m अपॉन अंडर रूट a square plus m square. Mark this as 1. Now differentiating y with respect to m. So d by dm of y, d by dm of y equals to d by dm of log of a square plus m square. Now log x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स 1 अपॉन x, तो log a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर. ओके, नाउ d by dm चेन रूल से, d by dm किसका नाउ? a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर. So this we can write as derivative of a square is 0 and m square का डेरिवेटिव इज 2m. तो ये हो जाएगा 2m अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर. दिस इज dy by dm. Mark this as 2. Now dy by dx, पहले dy by dx by dm, then dy by dm, and in last dy by dx. It is dy by dm divided by dx upon dm. उल्टा नहीं लिखना, ऊपर y लिखना है, नीचे x लिखना है. So put here the values 2m upon a square plus m square
whole divided by m upon under root a square plus m square. So students, you know extreme terms की multiply होती है and middle one. So ये middle one एक साथ, extreme one एक साथ. तो this we can write 2m root a square plus m square m a square plus m square. ये m से ये m cancel and what is root x upon x cancel होकर क्या रह जाएगा? root x. तो यहाँ पर भी कैंसिल होगा तो क्या रहेगा? दिस एंड दिस कैंसिल, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर. दिस इज dy by dx. नाउ कम टू फोर्थ वन. x equals to simple as sin theta and y equals to tan theta. सो डिफरेंशिएट करेंगे पहले x को विद रेस्पेक्ट टू थीटा. सो डिफरेंशिएटिंग with respect to theta because here theta is perimeter, so dx by d theta ये हो जाएगा cos theta. Differentiating with respect to theta dy by d theta ये हो जाएगा sec square theta. दोनों निकाल लिए हमने. इसको फर्स्ट मार्क कर देंगे, इसको सेकेंड. नाउ dy by dx, this we can write dy by d theta divided by dx upon d theta. सो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? dy by d theta मतलब sec square theta upon cos theta because dx by d theta is cos theta. So take this cos theta, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे. sec square theta into sec theta because 1 upon cos is sec. So therefore dy by dx equals to sec cube theta. Okay. Now x equals to a 1 minus cos theta, y equals to b theta minus sin theta. So differentiating with respect to theta because perimeter is theta. So differentiating with respect to theta dx upon d theta a side में, okay, constant है. d by d theta of 1 minus cos theta. Now दो टर्म्स है, दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट. सो 1 का डेरिवेटिव ये कितना हो जाएगा? 0 एंड cos थीटा का डेरिवेटिव d by d theta of 1 is 0. d by d theta of cos theta is minus sin theta. सो ये हो जाएगा a sin theta. dx by d theta that is a sin theta. अब हम निकालेंगे dy by, इसको मार्क कर देते हैं 1. डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा. सो dy by d theta b साइड में d by d theta of theta minus d by d theta of sin theta. So this we can write theta का डेरिवेटिव थीटा की रेस्पेक्ट में 1 एंड साइन थीटा का डेरिवेटिव इज cos थीटा. इसको मार्क कर देंगे सेकेंड वन. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट dy by dx. This we can write as dy by d theta divided by dx upon d theta. So put here the values. ऊपर आना चाहिए dy by d theta b 1 minus cos theta. dx by d theta is a sin theta. Now what is 1 minus cos theta? Now you have to use here the formula. 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2 and sin theta का formula 2 sin theta by 2 cos theta by 2. 2 से 2 cancel. sin theta by 2 से एक sin theta by 2 cancel. So answer is b upon a tan theta by 2. This is dy by dx. And ये हमने कहाँ से रखा? From first and second. आते हैं सिक्स्थ पार्ट पर, that is x equals to t plus 1 upon t whole bracket raised to the power a and y is a
raised to the power t plus 1 upon t. So here parameter is t. So dx upon dt. Now x to the power n, its derivative is nx raised to the power n minus 1. So consider this as x. इसे x लेंगे, x raised to the power a. So we can write, पहले मैं लिख देती हूँ, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम विद रेस्पेक्ट टू t. So d by dt of x, यहाँ पर भी d by dt of t plus 1 upon t whole bracket raised to the power a. So ये हो जाएगा a t plus 1 upon t raised to the power a minus 1, n x raised to the power n minus 1. So a t plus 1 by t raised to the power a minus 1 d by dt of t plus 1 upon t, chain rule. So a t plus 1 upon t raised to the power a minus 1. Now derivative of t, d by dt of t is 1 and d by dt of 1 upon t is minus 1 upon t square. So we can write it as, और simplify कर सकते हैं क्या? No, we can't simplify it further. That's all, इतना कर सकते हैं, t square minus 1 upon t square. Write it as first. Okay, now come to y. Y is a raised to the power t plus 1 by t. So differentiating with respect to t, a to the power x का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स a to the power x log a. So this we can write as dy by dt a to the power t plus 1 by t log of a. बट चेन रूल का यूज करना पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे d by dt of t plus 1 upon t. So this is a t plus 1 by t log of a. Same here, t का डेरिवेटिव 1 and this as 1 upon t square. Or you can write here t square minus 1 upon, mark this as second. This is dy by dt. निकालेंगे dy by dx, that is dy by dt divided by dx upon dt. थोड़ा सा इस केस में कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, a raised to the power t plus 1 upon t. Directly what is this? You can see that this is y. So in place of writing a to the power t plus 1 by t, simply we can write here y log of a t square minus 1 upon t square divided by. Now this is a t plus 1 upon t raised to the power a minus 1 t square minus 1 upon t square. ये completely cancel. थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ओके, अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो देखना है. न्यूमरेटर में तो कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, y log a. डिनोमिनेटर में ये a है, t plus 1 upon t raised to the power a, t plus 1 upon t raised to the power minus 1. t plus 1 upon t की पावर कितनी है? a minus 1. इसको स्प्लिट कर दिया. स्प्लिट क्यों किया, उसका रीजन, क्योंकि इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट हेयर x, और ये नेगेटिव है तो इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं. ओके, सो दिस इज द आंसर, dy by dx. पार्ट पर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, x is cos inverse 2t upon 1 plus t square and y is sec inverse root 1 plus t square.
सो इसमें डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या पुट करना है, सब्स्टिट्यूशन क्या होगा वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. सो यहाँ पर कॉस के साथ t 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये साइन का फॉर्मूला बन सकता है. अगर हम यहाँ पर पुट कर दें t को, क्या पुट करना चाहिए t को, tan थीटा. तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t, राइट. सेम हेयर y में भी क्या आया, रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर, तो t के प्लेस पर tan थीटा ही पुट करेंगे. सो पुट करते हैं तो देयरफॉर x क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज sin 2 थीटा. cos इनवर्स sin 2 थीटा, ये हो जाएगा cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, बिकॉज cos इनवर्स के साथ हमें cos चाहिए. ठीक है, तो साइन को हमने cos में चेंज कर दिया. नाउ बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. यहां पर हम थीटा की वैल्यू को भी पुट कर देते हैं, कितनी, tan इनवर्स t. अब हम निकालेंगे dx अपॉन dt. t का t पेरीमीटर है तो dx अपॉन dt. पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0, माइनस 2 डेरिवेटिव के बाहर, और tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. सो ये हो गया माइनस 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt. ओके, अब y में भी सेम सब्स्टिट्यूशन करेंगे. सो इधर लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आकर हो जाएगा sec थीटा. नाउ sec इनवर्स sec थीटा, इट इज थीटा. थीटा के प्लेस पर वी कैन पुट tan इनवर्स t. सो dy बाय dt क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. मार्क दिस एज 1, दिस एज 2. सो dy बाय dx हो जाएगा dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt. पुट हियर द वैल्यूज, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड माइनस 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, एंड आंसर इज राइट हियर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. सो dy बाय dx इट इज माइनस 1 अपॉन 2. स्टूडेंट्स, एक छोटा सा पॉइंट मुझे यहाँ पर एक और एक्सप्लेन करना है. जब हम x और y दोनों में सेम सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं, जैसे यहाँ पर भी t के प्लेस पे tan थीटा और इसमें भी t के प्लेस पर tan थीटा, तो अगर हम यहाँ तक ही ये स्टेप रखते और हम dx अपॉन d थीटा करते तो कितना आता, -2, और यहाँ पर dy बाय d थीटा करते तो कितना आता, 1. देन ऑल्सो वी विल गेट द सेम आंसर. ओके, सो अगर सेम सब्स्टिट्यूशन पुट किया है तो नो नीड टू, ये जो मैंने स्टेप करा ये स्टेप नहीं करना चाहिए था, करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहती थी कि दोनों से तुम्हें आंसर दिखाऊं. अगर ये हम स्टेप नहीं करते और हम डायरेक्ट निकालते dx बाय d थीटा तो ये आता -2, और इधर ये स्टेप नहीं करते और हम निकालते dy बाय d थीटा तो ये आता 1, तो भी हमारा आंसर 1 अपॉन -2, मतलब सेम आंसर मिलता. ओके, सो बोथ द वेज यू कैन डू. पार्ट इज x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4t क्यूब माइनस 3t and y is tan inverse root 1 minus t square upon t. So okay, start करते हैं. पुट क्या करेंगे इसमें, t के प्लेस पर cos थीटा. So put t equals to cos थीटा, therefore थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स t. So ये x हो जाएगा cos इनवर्स 4 cos cube theta minus 3 cos theta. That is, we can write here cos 3 theta.
नाउ बाय यूजिंग प्रॉपर्टी x कितना हो जाएगा 3 थीटा। अभी मैं यहां पर होल्ड करती हूँ, जो मैंने पहले एक पॉइंट बताया उसको मैं क्लियर करूंगी इस क्वेश्चन में। y इक्वल्स टू, जब भी रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर आए तो जनरली या तो हम साइन पुट करते हैं या कॉस, दोनों से हमारे आंसर आएंगे। बट मैंने फर्स्ट में x में क्या पुट किया है, कॉस, तो मैं इसमें भी कॉस सेम पुट कर लूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स, क्या आएगा इधर, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा which we can write as theta. Now students, दोनों में सेम पुट किया है सब्स्टिट्यूशन। सो अब थीटा को वापस t में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कब करना है, जब दोनों में सेम सब्स्टिट्यूशन। सो डिफरेंशिएटिंग दिस विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ये कितना आएगा 3, एंड जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा तो ये कितना आएगा 1। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। नाउ dy बाय dx, it is dy by d theta divided by dx upon d theta. So answer is 1/3. अब अगर हम इसको डायरेक्ट नहीं करते तो यहां पर हम क्या लिखते, 3 कॉस इनवर्स टी, और इधर भी कॉस इनवर्स टी। डिफरेंशिएट टी की रेस्पेक्ट में करते तो भी कैंसिल होकर आंसर कितना आता, 1/3। So in this way students, we have completed exercise 1.4 question number 1. I think that this video will be helpful to you. अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए।